come, what we are offering to you as a training part, and what we want to deliver to you, and what you can expect from this course. So basically, this course is designed for 18 days. 18 sessions would be there for 1 hour, and it would be a mix of me as well as someone who is going to teach you about the estimate, and then there will be someone who will come from the bank who is working as a valuer over there, and will give you the guidance how things work in the bank. So to start about the everyday part, I would like to ask, is everyone comfortable with English, or you want it with the mix of English and Hindi? So we can proceed with the session accordingly. So what do you want? English, Hindi mix? You can say Hindi, English, Hindi. Okay. Okay. English. Okay. So no problem. We'll do it as a mix, and then we will proceed, right? So what we are going to have in this course is like we are having different 18 sessions on the session. We have day one, where we are going to talk about what is property valuation, why it is required, why a civil engineer is a valuer. So it would be like an introduction. Who, suppose if there is someone who is just graduated and looking to start his career right now, so he's looking for jobs, or maybe he wants to explore a new session, right, new thing. So that's what we are planning, that's what we'll discuss on the day one. So on day one, you will be getting all the insights about what is property valuation, why it is required, and why a civil engineer only as a valuer, why can't everyone can work. Then when we think about a new career option in our life, we always talk about that what are the benefits if we choose that particular line, right? So we will take like what are the benefits if you work as a valuer in your career. Then on the comparison of wages and perks and remunerations to the different profile, that also we will discuss in this particular day one. After that, we'll see how you can grow your career. What would be the graph of your career if you choose the property valuation, right? So we'll also discuss about the career graphs, what are the different positions which are there in the bank or maybe non-banking financial institutions. So that we will also discuss. उसके बाद हम जब बात करते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स जो हमने सिविल इंजीनियरिंग में सीखी है, जो हम लोगों ने 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन में सीखी है, तो उसके अलावा और क्या क्या नेसेसरी स्किल्स है जो आपको उस पर्टिकुलर जॉब सेट में ग्रो करने में हेल्प कर सकती है. सो विल टॉक अबाउट सम सॉफ्ट स्किल्स विच यू आर रिक्वायरिंग इफ यू वांट टू ग्रो एज अ वैल्यूअर, राइट? सो पहले दिन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे, एक बेसिक आइडिया देंगे कि अगर आप सपोज कीजिए आप रिसेंट ग्रेजुएट्स है लाइक फ्रॉम 19, 20 और 21, और मे बी यू आर वर्किंग देयर फॉर 3-4 years एंड यू स्टिल फील दैट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप यू वांट सी अ गुड करियर इन दैट पर्टिकुलर लाइन. सो उसका एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन डे वन में हम करेंगे. उसके बाद हम जब डे टू की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर न्यू डोमेन विच वी वांट टू वर्क, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि उसका जॉब मार्केट क्या है, राइट? तो अगर हम सपोज कीजिए हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट बिलिंग और प्लानिंग, तो वी नोस कि बिलिंग की हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जरूरत है, तो हमको पता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा हम वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं. तो हम एक ब्रीफ आइडिया हम लोग उस दिन में लेंगे कि जॉब मार्केट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे आप एज ए वैल्यूअर काम कर सकते हैं, आपके डिफरेंट प्रोफाइल्स क्या क्या हैं, और लाइक वेयर यू कैन वर्क, राइट? सो दैट इज वी अंडरस्टैंड. देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वेयर टू फाइंड द जॉब्स. मतलब अगर आपने ये सेशन खत्म किया और आपका एक इंटरेस्ट आया कि ओके आई कैन सी माई सेल्फ वर्किंग एज ए वैल्यूअर इन द मार्केट, और मैं काम करना चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आप इस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं. मतलब आप जो भी डिफरेंट वेज है, मैं आपके उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा. देन आई विल इंट्रोड्यूस, बिकॉज अभी हम लोगों को पता है कि वैल्यूअर सिर्फ बैंक में होते हैं या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता है, पर मैं आपको एक एनबीएफसी, जो अभी हमें नहीं पता है कि एनबीएफसी क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा थोड़ा सा. फिर बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में हम बात करेंगे कि बैंक कैसे काम करता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे,
और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, क्योंकि वैल्यूअर अगर किसी चीज की वैल्यू कर रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी है, राइट। अब प्रॉपर्टीज में जाके वैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें वैल्यूअर का क्या क्या रोल हो सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग डे 2 विल मूव टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 3, जहाँ पे हम लोग एसेंशियल टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो एक बिल्डिंग बायलॉज के लिए, बिल्डिंग बायलॉज को रिलेट करते हैं। तो जहां भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो रहा है, सपोज कीजिए देयर इज ए 100 यूनिट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, या फिर आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि आपके आपके आसपास कोई घर है, नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउस है। तो हर एक कंपोनेंट, उस बिल्ड हाउस का एक कंपोनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टर्म से जाना जाता है, जैसे कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया हो गया, सुपर बिल्टअप एरिया हो गया, एफएसआई हो गया, ग्राउंड कवरेज हो गया, मार्जिन हो गए, हाइट रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको रिलेट करती है, तो इनकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 3 में हम लोग इसी बारे में बातें करेंगे कि आपको ये चीज बिल्कुल आपके माइंड में हो, और जब भी अगर आप जॉब करें तो आपको एक क्लियर आइडिया हो कि अगर हम कारपेट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कारपेट एरिया क्या है, अगर हम ग्राउंड कवरेज की बात करें तो ग्राउंड कवरेज क्या है, तो एफएसआई की बात करें तो वो एग्जैक्टली हम उस चीज का हम डे 3 पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 4 पे। तो जब आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते हैं तो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि आपने ये चीज, आपने 2+2 किया और 4 आ गया, ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है। इट इज मोर अबाउट योर विजुअल डिसीजन जो आप देखते हैं साइट पे, या फिर इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मतलब आपको प्रॉपर्टी देखोगे, आप उसकी लोकेशन देखोगे, तो ऐसे करके कई चीज होगी। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो समझना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बेसिक्स, हमें ये जरूरी नहीं है, हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चरली डिजाइन कैसा हुआ है या उसके क्या डिफरेंट कैलकुलेशंस क्या क्या किए गए हैं, पर हमारे लिए जरूरी उसका बेसिक्स समझना जरूरी है कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या चल रहा है, और मेथड्स कौन कौन से हैं। अगर अगर एक स्टैंडर्ड मेथड, मान लीजिए अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को कितना अप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता, और साइड पे वर्कमैनशिप शिप्स कैसी है। और तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपकी वैल्यूएशन पे कितना इफेक्ट आ सकता है या कितना इफेक्ट नहीं आ सकता। तो इट्स तो डे 4 मोर ओवर रहेगा एग्जीक्यूशन ऑफ अ हाउस कंस्ट्रक्शन, बेसिक ऑन बेसिक्स लेवल, मतलब यहाँ पे ज्यादा डीप सिविल इंजीनियरिंग की बातें नहीं होंगी कंस्ट्रक्शन की, बट इट वुड बी सफिशिएंट। अगर आप वैल्यूअर की तरह काम करते हैं तो आपको वो एक ब्रीफ आइडिया समझ में आएगा कि किस चीज के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं तुम पे। उसके बाद हम लोग डे 5 पे जाएंगे, और एक पूरे प्रोसेस है, वैल्यूएशन का एक प्रोसेस है पूरा, जो बैंक्स में फॉलो होता है या जो एनबीएफसी में फॉलो होता है, कि आपको केस मिलता है, आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, उसके मेथड्स क्या क्या है, मेजरमेंट के मेथड्स क्या क्या है, मतलब आप मेजरिंग टेप से नापना चाहते हैं या आप कोई लेजर मटेरियल यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम उस दिन थोड़ा ड्राइंग रीडिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको एक प्लान दिया जाता है, एक लेआउट दिया जाता है, तो उसको समझना बेहतर तरीके से, वो उस बारे में हम बात करेंगे। तो डे 5 एंड डे 6 मेनली वुड बी टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। मतलब अगर आपको एक केस मिला है और वी हैव टू रीच एट द एंड, जब हम वैल्यूएशन खत्म कर देते हैं, तो हम उस पूरे सेशन में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा, अगर हमारे पास आज केस आ गया तो हमको कैसे हमारी फाइल इनिशिएट करनी है, हमको कैसे वहां पे विजिट करने जाना है, और हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो वही चीजों में हम बात करेंगे। इसमें मेनली इस दो सेशन का मेन जो बातें होंगी वो ये होगी कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से काम किया है उस एक्सपीरियंस में मैं क्या क्या टिप ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस डिफाइन कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, पर हर प्रोसेस में आपकी सर्टेनली एक्सपीरियंस के साथ आप कुछ सीखते हो। तो उस प्रोसेस में मैं आपको अपना इंसाइट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको उस बारे में पता लगे कि अगर मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन है, और अगर इनकेस आपके सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या उस सिचुएशन में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो आप। तो डे 5 और डे 6 पूरा का पूरा रिलेट करेगा हमारा प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन पे। फाइल आई है आपके पास, अब आपको उसकी वैल्यूएशन करनी है, तो डे 5 और डे 6 में हम उस बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम अगले दिन पे जाते हैं, जब हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 7 पे जाते हैं,
तो when we will move ahead in this session, when we move ahead in this course, तो आपको एक चीज, दो वर्ड से हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा एक मार्केटेबिलिटी, एक होगी, दूसरा होगा हमारा टेक्निकल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये दोनों अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्मूला थिंग कि आपको एक फॉर्मूला डालना है आपको मार्केटेबिलिटी मिल जाएगी। दिस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, राइट। तो हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 7 पे हम इन्हीं बारे में बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको मार्केटेबिलिटी एज ए वैल्यू और समझना क्यों जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी की क्या है, मतलब वो कितना इम्पैक्ट आपके अप्रेजल पे करती है, या यूं कहे कि अगर टेक्निकल एक्सेप्टेंस है या नहीं है, उससे प्रॉपर्टी को आप अप्रेस कर सकते हैं या वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर फ्रॉम फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको फंडिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। सो उसके लिहाज से मार्केटेबिलिटी और टेक्निकल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। लेकिन वो डिसीजन कौन करता है, वो डिसीजन करता है एक प्रॉपर्टी वैल्यूअर। तो आप कुछ कैसे उस डिसीजन तक पहुंचना है, वो हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 7 पे बात करेंगे और डे 8 पे भी बात करेंगे। तो डे 7 और डे 8 जो हमारा होगा वो इंक्लूड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स जो एक प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, नेबरहुड, और हम लोग बहुत डीप डाइव करेंगे। सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव इंक्लूडेड ऑलमोस्ट लाइक 15 to 16 फैक्टर्स, और वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट डालती है। अगेन दिस फैक्टर्स आर नॉट कंप्लीटली विजुअल, कभी कभी ये नॉन विजुअल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आपको गेन करने होते हैं। ठीक है, तो अगेन इट्स मोर अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। तो ये मैं आपको वो चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा, वो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करूंगा जो अगर आप वैल्यूअर आप अपना डिसीजन देना चाह रहे हैं तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट या कैसे हेल्प कर सकता है। तो हम इन बारे में डे 7 और डे 8 पे बातें करेंगे। अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 9 पे। तो यहाँ पे हम लोग इस दिन पे हम बात करेंगे डिफरेंट मैथडिकल अप्रोच, जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन, इनकम अप्रोच। तो एक स्टैंडर्ड मेथड है कि हम लैंड और कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालते हैं, हमको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मिल जाती है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन देर आर सम डिफरेंट मेथड्स जो थियोरेटिकली यूज किए जा सकते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, इनकम अप्रोच होगा, या रेंटल एक मेथड होता है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो उससे भी आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन या किसी एक फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हम इस बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंट सिस्मिक जोन्स कैसे एक एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है डे 9 पे, डिफरेंट जोन्स लाइक सिस्मिक जोन, सॉइल टाइप्स, ये एक एक बड़े बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। मतलब जैसे सिस्मिक जोन की बात करें तो वो 1 किलोमीटर पे चेंज नहीं होता, दैट इज फॉर अ सिटी और फॉर स्टेट। तो उस लेवल का जब हम बात करते हैं तो पर एक जनरल अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो इट्स वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू ग्रो इन योर करियर। तो जब आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, आप सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, आप समझिए कि आप जोनल टेक्निकल मैनेजर हैं और आपको 4 स्टेट दे दिए गए, तो आपको उस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को इम्पेक्ट कर रही होती है। तो डे 9 पे हम लोग मेथड्स की बात करेंगे और कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं डे 10 पे। तो मतलब after understanding all the technicalities, basic technicalities of a property valuation, डे 10, डे 11 एंड डे 12, 3 दिन हम लोग रियल लाइफ केसेस पे बात करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास प्रैक्टिकली हम लोग हमारी चीजें जो हमने सीखी है अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो व्हाट आई हैव ट्राइड कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तीन अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। मतलब अलग अलग अप्रोच इन द सेंस कि आपको आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज मिल सकती है। तो जब मैं अगर इसके बारे में बात करूं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डे 10 और डे 11 और डे 12 के बारे में, तो जैसे एक सिटी एक रेसिडेंशियल पार्ट है, तो एक सिटी एक नॉर्मल घर हो सकता है जो एक सोसाइटी के अंदर हो सकता है। उसके बाद एक एपीएफ हो सकता है जिसको जो पूरे एक प्रोजेक्ट को फंडिंग की जाती है, पूरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को फंडिंग की जाती है, तो एक वो पार्ट हो सकता है। उसके बाद आज के टाइम में जहाँ पे बैंक अपना बिजनेस रूरल एरियाज में भी एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक विलेज प्रॉपर्टी को वैल्यू करने के भी एक अप्रोच हो सकती है। तो इन 3 दिनों में हम लोग इन्हीं बारे में बात करेंगे, डे 10 पे, डे 11 पे और डे 12 पे हम लोग इसी बारे में बात कर रहे होंगे। डे 10 पे हम बात करेंगे एपीएफ। अगर किसी एक पूरे प्रोजेक्ट को फंडिंग करनी है
तो एज ए वैल्यूअर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए उसकी वैल्यूएशन को लेके, या आपको क्या किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। तो उसके जो इनसाइट्स, जो एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, वो हम इस दिन डे 10 पे बात करेंगे। जब हम डे 11 पे जाएंगे तो हम लोग डे 11 पे केस स्टडी करेंगे कुछ सिटी साइड की। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक बात करूं कि अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, गेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो एक बाउंड्री के अंदर बनाए जाते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रिसेंट कंस्ट्रक्शन है तो सारे बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज फॉलो की जाते हैं, टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनाया जाता है, सारी बेसिक अमेनिटीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो वहां पे एक सिंपल एक अप्रोच मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी कॉलोनी के घर के बारे में जब बात करते हैं, किसी नॉर्मल एक रेसिडेंशियल प्लेस के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, तो वो एक छोटा सा घर होता है या एक नॉर्मल हाउस होता है। तो उसकी किस तरह से आपको वैल्यूएशन लेनी है, दैट वी विल डिस्कस ऑन प्रॉपर लाइक डे 11। डे 12 पे हम लोग जाएंगे कि स्टडी ऑफ अ रूरल साइड, जहाँ पे विलेजेस में, क्योंकि विलेजेस में कंस्ट्रक्शन ज्यादातर पुराने होते हैं, लैंड वैल्यू का इतना मेजर इम्पैक्ट होता नहीं है। तो उस केसेस में आपको किस तरह से एक प्रॉपर्टी को देखना है, क्या क्या पॉइंट्स पे आपको कंसिडर करने हैं, किस तरह की वैल्यूएशन पे। तो डे 12 वुड बी हमारा रूरल साइड। सो दिस वुड बी अबाउट 3 days जो हम लोग लाइव केस स्टडीज कर रहे होंगे डिफरेंट जोन्स ऑफ अ सिटी और ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं 13 एंड 14 में, तो सिंस आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ एनबीएफसी, जो हम बात करेंगे सेशन में भी, तो व्हाट आई हैव ट्राइड कि मैं मतलब आई हैव इंट्रोड्यूस अ पर्सन फ्रॉम अ बैंक। तो बैंक का जो वर्किंग कल्चर है या बैंक के जो वर्किंग एप्लीकेशन है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में, वो स्लाइटली थोड़ा सा एनबीएफसी से डिफरेंट है। तो हम ये 2 दिन पे एक बैंक के वैल्यूअर को मतलब बैंक वैल्यूअर जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उनके क्या कॉन्स प्रोज है या उनकी क्या वर्किंग मेथड्स है, उस बारे में वो बात कर रहे होंगे। फिर बैंक के पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह से वो लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं, उनके क्या डेप्रिसिएशन के प्रोसेस है या उनका हायरार्की क्या है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप एज ए फ्रेशर इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आप सपोज कीजिए आपने अभी अभी जस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है और आप एज ए फ्रेशर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना फ्रॉम आप लोग अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हैं। मतलब जैसे इफ यू स्टार्ट योर वर्किंग एज ए एनबीएफसी, एज ए वैल्यूअर इन एनबीएफसी, तो आप वहां से बैंक की जर्नी कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो ये 2 दिन पे हम लोग उसी बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि टेक्निकल भी होगी प्लस आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको अपना करियर डेवलप करना है यंग एज ए यंग प्रोफेशनल, तो वो आपको इस चीज में हेल्प करेगा। थर्डली आपको एक कम्युनिटी का भी एक सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, कि अगर आप एज ए बैंक वैल्यूअर, तो आप अपने इंसाइट्स ले सकते हैं कि सर मैं कहाँ कहाँ पे बैंक कैसे ट्राई कर सकता हूँ, या कौन कौन सी बैंक है जो आने वाले टाइम में एग्रेसिवली देख रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत इंक्रीजिंगली हायरिंग कर रहा है, मतलब हर सिटी में हर स्टेट में उनकी हायरिंग्स है। तो ये हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं 13 और 14 डे पे। उसके बाद हम लोग जो 15 और 16 डे पे जब हम बात करने वाले इस कोर्स के बारे में, वो बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज, एस्टिमेट रीडिंग। सो जब वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, तो उसका जो एक मेन पार्ट है, उसका जो मेजर पार्ट है, वो है एस्टिमेट से रिलेटेड। मतलब आप नॉर्मली तो आपको जो वैल्यूएशन मिलती है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की मिलती है, मगर आपको कई बार ऐसे मिलते हैं जहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्शन हाउस होते हैं। तो अगर आप एज ए यंग फ्रेशर है, तो आपको एस्टिमेट को पढ़ना है, एस्टिमेट की रीडिंग, एस्टिमेट कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, और बैंक और उस एस्टिमेट का रिलेशन कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, और एज ए कस्टमर इफ समवन कम्स टू यू, इफ यू आर वर्किंग एज ए वैल्यूअर, की आई वांट टू मेक अ हाउस इन्वेस्टिंग 20 lakhs or 30 lakh rupees, and but you see that land area is very small, but still he is spending that much, तो बैंक कितने लिमिट तक अप्रूव कर सकती है, और एक्चुअल में जो वो एस्टिमेट दिया जा रहा है वो कितना लेजिटिमेट है, वो कितना सही तरीके से बनाया गया है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 15 और 16 डे में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि एक नॉर्मल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, कि जहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल हाउस का या नॉर्मल घर का एस्टिमेट बनाएंगे, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कितना आरसीसी का एक्सपेंडिचर है, कितना उसकी फाउंडेशन के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फिर ड्राइंग रीडिंग भी हम उसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि एस्टिमेट, क्योंकि आपको एस्टिमेट बनाना नहीं है, बट आपको एस्टिमेट को प्रूफ करना होता है एज ए वैल्यूअर, कि वो एस्टिमेट कितने हद तक सही है। तो उसके लिए आपको एस्टिमेट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
कि अगर आपके पास कोई एस्टिमेट आया है तो आप उसको पूरा समझ सके कि हाँ ये एस्टिमेट सही तरीके से बनाया गया है, या ये या जो भी कस्टमर की आस्क है वो आपके हिसाब से सही है। तो एस्टिमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम लोग 15 और 16 डे में उसी बारे में बात करेंगे। अब ये एस्टिमेशन ऐसी चीज है कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग बिग बिग, मतलब आपको बोले तो कि इट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ नॉलेज। बट व्हाट वी आर फोकसिंग इन दिस टू सेशन इज मेनली इफ यू आर वर्किंग एज अ वैल्यूअर इन अ बैंक और एनबीएफसी, तो आप उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए कि आप एक नॉर्मल एस्टिमेट को आप रीड कर सके, आप उसको समझ सके कि उसके वो सही है कि नहीं है। तो that is the goal of these two sessions. Maybe it can be more as well. I don't know, but we are trying to get an expert for this particular field. तो हम उनसे बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी इनिशियली 2 दिन है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है। आफ्टर दैट ऑन डेट 7, कई जो हमारे लास्ट जो बैचेस हुए हैं उसमें कई लोगों के क्वेश्चन थे कि हाउ टू एमपैनल एज ए वैल्यूअर इन अ बैंक। अगर आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप खुद की कोई ब्रांच चालू करना चाहते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन या क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके बारे में एक सेशन रखा गया है। और इसमें वी आर ट्राइंग इन दिस सेशन वी आर ट्राइंग टू फैच सम पीपल फ्रॉम बैंक्स, सो दैट आपको एक मॉक इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कराई जा सके। अगर इनकेस आपको कहीं अप्लाई करते हैं आप आने वाले टाइम में, तो आप उस इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू हैव सम मॉक इंटरव्यूज ऑन द डे 17, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इफ व्हेन यू आर इन इंटरव्यू। सो हम ये चीज भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऑन डे 17 कि ये चीज भी आपको दी जा सकती है। तो डे 17 मेनली फोकस होगा इफ यू वांट टू ओपन योर ओन कंसल्टेंसी आफ्टर सम इयर्स, तो आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, या कौन सी एग्जाम आप देंगे, या किसके अंडर आपको रजिस्ट्रेट होना है, वो सब चीज हम बात करेंगे। पैरेलली वी विल इनवाइट पीपल एंड वी विल हैव सम मॉक इंटरव्यूज, सो दैट अगर आपको कोई इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपको मैं पास्ट बैचेस का थोड़ा सा बता दूं कि पास्ट बैचेस में कई लोगों को जॉब हुआ है, मतलब number is not that high, but still some people got job after this course, and also some people got interviews, but किसी का last year चल रहा था, किसी के third year, तो कुछ flows से भी नहीं हो पाया। But certainly this whatever we have included in this course is very helpful in terms of the interview and in terms of you looking for job, मतलब किस तरह से job आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद on day 18 we will have an assessment. This assessment is basically for the certificate which Protrain is giving to you. So उस assessment में एक हम लोग written exam लेते हैं, and I sometimes take ओपन एग्जाम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते हैं और आपका एक जजमेंट देखते हैं कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम लास्ट ट्रेनिंग। सो वो भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, पर मेजरली हम लोग इसमें एक एग्जाम रखते हैं, बेसिक छोटा सा एक एग्जाम होता है, 1 आवर का एक एग्जाम होगा। ये बहुत मैंडेटरी है इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट, सो मैंडेटरी अटेंड, और आपको हेल्प करेगा कि आपको सर्टिफिकेट आपको इजीली मिल जाए। So this is the journey which this is the content which we will have in this property valuation course. So I'd like for this demo I would like to like finish it here, but if you have any questions, so आप मतलब पूछ सकते हैं। So I will come back to my screen then. Yeah. Yes, please. If you want to ask question, please आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, माय नेम इज हाय सुहेल खान। सुहेल। हाँ हाय सुहेल। सर, मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली सर, एज एन वैल्यूअर के लिए मेरे को मास्टर डिग्री करनी चाहिए या एमएससी करना चाहिए बिल्डिंग वैल्यूएशन से, रियल एस्टेट एंड वैल्यूएशन से? मतलब आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको बैंक में काम करना है तो आपको डिग्री डिग्री जरूरी है एमएससी की, या बैचलर किया हो तो चल जाएगा, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, हम मास्टर जैसे सर रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन का मास्टर्स होता है, एमटेक भी हाँ। होता है और एमएससी भी होती है। नहीं, आप मतलब आपका गोल आप क्या करना चाह रहे हैं, कि आप एंड गोल क्या है, कि आपका मतलब आफ्टर दैट बिल्डिंग डिग्री यू वांट टू वैल्यूएशन में वर्क? ही, हाँ बिल्डिंग वैल्यूएशन में मेरे को एंटर होना है,
तो एम्पेलमेंट के लिए मेरे को स्टेप नहीं मिल रही है कि मैं किस चीज को मैं पहले करूं मैं। सी गेटिंग एमपेनल नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको आप किसी डिग्री के बेस पे आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, या सॉरी किसी एक एग्जाम से जो हम बात करेंगे, उस एग्जाम से हम्म, आपको लाइसेंस मिल जाता है। पर एक बैंक में एमपेनल होना वो एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। वो आपको, अगर आपके हम्म, पास लाइसेंस है तो यू कांट गेट इनटू डायरेक्टली इनटू अ बैंक। तो ओके अगर आपको एज ए वैल्यूअर जॉब शुरू करना है तो मैं आपको बस एक बता दूं जो हमने कोर्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि एक एनएचबी का रूल है कि अगर कोई भी बैंक एक वैल्यूअर हायर करना चाहता है तो उसके लिए he needs to have a BTech degree in civil engineering और BR would be sufficient। तो कोई पूछ रहा है डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। इट नीड्स टू हैव अ बीटेक डिग्री, सो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। बट फॉर डिप्लोमा पीपल देर आर सम फ्रीलांसर्स, और जो बाहर जो वैल्यूअर काम कर रहे हैं बैंक में, तो वहाँ पे डिप्लोमा पीपल हायर कर ले वो लोग। सो यू कैन गेट अ एक्सपीरियंस मीन वाइल जब तक आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। बट यू नीड अ डिग्री to work as a valuer in a bank or NBFC। हाँ, तो सर एमएससी या एमटेक करने की कोई कंपलसरी जरूरत नहीं है रियल जी एस्टेट और जी वैल्यूएशन की, उससे जी जो जी कोई नहीं जरूरत नहीं, नहीं अगर आप बैंक में अगर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एज ए वेल्डर जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, जो बेसिक है। हायरार्की होती है, जो फर्स्ट जो स्टेप होता है बैंक के अंदर या एनबीएफसी के अंदर, वो होता है कि आप एज ए टेक्निकल ऑफिसर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक डिग्री की जरूरत है। एंड सम एनबीएफसी हायर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, like there would be a technical interview or maybe HR round and everything। some banks do take some exam as well। तो सबके अपने अपने हायरिंग प्रोसेस अलग है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। बट विद अ डिग्री ओके यू कैन ज्वाइन अ बैंक और एनबीएफसी। ओके सर। और सर आईबीबीआई का भी एग्जाम हेलो। होता है, उसको क्रॉस करने के बाद भी यानी एंटर हो वो सकते हैं वो उसमें? उसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पूरा एक दिन रखा गया है कि आपको अगर खुद एम्पेनल होना है किसी बैंक में, तो क्या हाँ क्या हाँ हाँ। चीजें रहेंगी। तो बेसिकली लाइक यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट की क्या रहेगा। बाकी हमने उस सब चीजों को इंक्लूड किया है, बिकॉज लास्ट 3 बैच में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे कि हम अगर एम्पेनल होना चाहते हैं तो क्या करना है। तो इसलिए हमने एक पूरा सेशन उसके लिए रखा है ट्रेनिंग के अंदर। हेलो। कित सर कितनी हेलो सैलरी तक मिल जाती है सर ये ज्वाइन करने सर। का बैंक में? सी इनिशियली जो पैकेजेस हैं, जो इनिशियली एज ए फ्रेशर जब आप बात करते हो, पहली बात बैंक में जाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस दे आस, मतलब इन बैंक अभी जो रिसेंटली मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी इस प्रोफाइल के एलिजिबिलिटी वाले बंदे अभी कम है ऐसा लगता है, क्योंकि बैंक भी अभी लेसर एक्सपीरियंस पे हायर कर रही है। तो इनिशियल फॉर एनबीएफसी पीपल इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2.5 to 3.5 एज अ फ्रेशर, विच इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं सारे, जो भी आपके पेट्रोल फूड एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। एंड इन द बैंक एज वेल, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 4 5 6 नाही मे बी इकडं समवेयर। त्याची सो सांगते म्हणलं त्याच्या मी कशाला आणलं तर एज पर योर एक्सपीरियंस। हेलो। सर I hope it's हेलो right। सर। जी लोकेश विश्वकर्मा फ्रॉम दिस साइड। I जी completed my सर। BE in 2015 and I'm pursuing my जी MTech in structure right now. So how many year experience I need for this field, or in which field I need experience? सो आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बात कर रहे हैं बैंक के रिगार्डिंग, राइट? Yes, yes sir. ओके। सो मैं आपको लोकेश जी बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो हायरिंग जो प्रोसेस है, जो हम डे 2 में बात करेंगे, कई जी। एनबीएफसी हैं जो फ्रेशर्स हायर कर रही है, बिल्कुल फ्रेशर, मतलब अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Okay. कई बैंक जो है वो हायर करती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, जैसे कि लाइक 2 इयर्स। आई हैव सीन एक बैंक का मैंने पोस्ट देखा था जो 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद भी हायर कर रही है, क्योंकि दे नीड पीपल, मतलब क्योंकि अब सबके बिजनेस एक्सपेंशन हो रहे हैं विलेजेस में, तो दे नीड पीपल। या फिर एक बैंक की सेकंड सब्सिडियरी ब्रांच हो सकती है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो उसके बाद एक एचडीएफसी हाउसिंग भी है जो हाउसिंग लोन्स में सब काम करती है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबके अपने रिक्वायरमेंट है, बट एज ए फ्रेशर एक करियर स्टार्ट करना इज नॉट दैट टफ टास्क। अभी मैं आपको रिसेंटली फ्रॉम लास्ट बैच देयर आर 3 पीपल हु जॉइन एयू बैंक एज ए फ्रेशर एंड दे गॉट सम 2.5 लाख पैकेज, बट एज ए फ्रेशर इट इज वेरी गुड, क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है। अगर आप अदर ब्रांचेस को रिलेट करें, मतलब अगर आप साइड इंजीनियर की तरह बात करें या आप कोई और चीज से बात करें, तो आपको ग्रोथ अच्छा मिलता है, कॉर्पोरेट लाइफ मिलती है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड करियर फॉर अ यंग ग्रेजुएट। Okay.
तो मीन्स आपका जो कोर्स है ये इस जो सर्टिफिकेट है वो जी एलिजिबल है सारे बैंक के लिए, एज ए फ्रेशर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी Yes? सी मैं आपको बताता हूँ कि दिस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि जैसे एक डिग्री होती है कि आप डिग्री जाके बोलोगे मैं सिविल इंजीनियरिंग करके आया हूँ, आई एम सिविल इंजीनियर। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू लैंड टू like this training will help you to have all the knowledge Okay. regarding प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो हम लोग जो बात करेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या है, इसकी करियर स्कोप क्या है, वो सब चीजें हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा सर्टेनली एक पॉइंट पे कि आप उस करियर की तरफ अपने स्टेप्स आगे ले जा सकते हैं, राइट। मतलब हम 4 साल जब डिग्री करते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि साइट इंजीनियर बनना है या ये नहीं बनना है या जो भी। तो ये जो कोर्स इट वुड बी लाइक 18 आवर सेशन, राइट। तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि दिस कोर्स इज नॉट कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, हम लोग जो हम एक्सपीरियंस से सीखा उसी एक्सपीरियंस को आपको डिलीवर करते हैं। और एक यंग किसी को अगर करियर स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। आज की जो फ्रॉम इन टुडेज डेट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये भी हमारे लिए करियर है कि नहीं है, बट दिस इज वेरी गुड करियर फॉर अ यंग ग्रेजुएट फॉर श्योर। एक्सक्यूज मी सर, मैं जी सुहेल, इस कोर्स का मैं चार्ज पूछना चाह रहा था कि वो कितना रहेगा अमाउंट आई वगैरह। हैव नो आइडिया सुहेल। जो प्रोटेनी टीम है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट इट्स वेरी अफोर्डेबल आई गेस। जो तो आप उनसे कर सकते हो कांटेक्ट। सो मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी इस बारे में। Sir, course registration link and price is dropped in chat box. Kindly check. हेलो, हाय सर। जी आकाश, जी आकाश। आकाश जी सेठ सर। सर मैं 2010 का पास आउट हूँ। मुझे 10 ईयर जी प्लस में एक्सपीरियंस है और मेरा जी कंसल्टेंसी फर्म है। तो जी मुझे बैंक में इम्पेनलमेंट के लिए पहली स्टेप क्या लेना होगी? जी, अब मैं आपको सबसे पहले एक बता दूं कि किसी भी बैंक में एमपैनल होना है ना आपको, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं आपको इसका एक रिवर्स प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। जी जी। मैं एज ए वैल्यूर काम करता हूँ किसी बैंक में या एनबीएफसी में। अब उस हम्म, बैंक को अपनी किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को सेकंड ओपिनियन लेने के लिए उसको एक आउटसाइड कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। आकाश जी ओके के पास मुझे ओके। जाना पड़ेगा। तो अब जी मैं क्या चाहूंगा, तो ये बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देती है, मुझे देती है। जब मैं अगर मैं सपोज ओके। कीजिए मैं जयपुर लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो बैंक मुझे कहेगा अच्छा कि आयुष जी आप जाइए और बाहर जाके देखिए कि हमको 2-3 एमपैनल करने हैं वैल्यूअर, तो जो अच्छे अच्छे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आप लेके आइए। तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो आई वुड लुक पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर ईयर्स, कि मुझे अगर सेकंड ओपिनियन लेना है, अगर मुझे किसी भी तरह की फॉल्ट नहीं चाहिए मेरी वॉल्यूशन में, तो आई वुड रेकमेंड कि कोई एक एक्सपीरियंस बंदा लेके आऊँ। सेकेंडली इसके रिक्वायरमेंट भी है, क्राइटेरिया भी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैंक को अगर वैल्यूअर हायर करना है तो वो देखती है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो बेटर है। तो जब वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए मतलब दे हैव स्टैंडर्ड्स, तो बैंक के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज। एंड ओके सेकेंडली जो आपको आईबीबीआई से रजिस्ट्रेशन मिलता है उसको भी एक एक्सपीरियंस मांगते हैं वो लोग भी, कि आप एज ए फ्रेशर, जैसे आप समझो कि चार्टर्ड इंजीनियर होते हैं उनको अलाउड होता है कि आप डायरेक्ट एमपैनल हो सकते हो, पर चार्टर्ड इंजीनियर बनने के लिए हमको एक एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। मतलब आपको कुछ जो उनके नॉट एग्जैक्टली नो, बट जैसे उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 7 साल का, जो भी है, तो एक रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस बोले सर, दैट इज अपना द पास आउट होने के बाद में उतने ईयर्स आपने कहीं पे काम करा हाँ होना चाहिए इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन दिया लाइन हुआ, में। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हो सकता है। अगर सब बैंक्स नीड, जिनके बिजनेस पोर्टफोलियो बड़े हैं, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि वी नीड पीपल हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ओनली, राइट। जैसे अभी आपको मैं कई दिन पे पोस्ट आते हैं कि वी नीड एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, दोनों में से कहीं का भी एक्सपीरियंस हो वी विल हायर, दैट इज वन थिंग। सर मैं बट यहीं पर एक कहीं कहीं फंसा हूँ, मतलब कुल मिला के जैसे चार्टर्ड इंजीनियर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी जी अभी मुझे कुछ एक्सपीरियंस पर्सन बोल रहे हैं कि आपको 34 एबी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी अम, जी। तो क्या आप दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मतलब रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। जब आप एमपैनल होने की बात करते हो ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि यू आर गोइंग टू बी द सेकंड ओपिनियन फॉर देम। अगर मान लीजिए 5 करोड़ का वैल्यूएशन है, 5 CR का वैल्यूएशन है, तो आपके आपके साइन पे एक सेकंड ओपिनियन मिलता है बैंक को, यू नो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हाई, तो उस हिसाब से उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बहुत डिफिकल्ट है।
बट यू कैन ट्राई, है ना। और हम लोग इस सेशन में और डीप डाइव बात करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट, मेरा मतलब अभी एकदम ऐसे एक्सपर्टीज नहीं बता सकता कि आप ऐसे से कीजिए, बट इसके लिए हमने पूरा एक सेशन रखा हुआ है, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आई विल फैच समवन जो तो इसमें ऑलरेडी दो तीन वैल्यूएशन चीजें में हैं है। सर, जैसे कि ये चार्टर्ड इंजीनियर का हो गया है कि आईओबी जी जो होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गई उसकी, जी और एक जी। आईबीबीआई एग्जाम हो गई। तो इसमें से आईबीबीआई एग्जाम जी। जी जी, तो इसमें से मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, बराबर। जी तो जी जी मुझे जी जी। क्या बेटर रहेगा करना, क्योंकि मेरे पास सी तीनों आई बी ऑप्शन है, तो मैं कोई एक आई जगह पैसा फंसाऊं और वहां से अपना आउटपुट लूं, सी ऐसा। चार्टेड इंजीनियर आर डायरेक्टली अलाउड टू गेट एम्पैनल्ड, ठीक है। चार्टेड इंजीनियर को दो तीन चीजें रिक्वायरमेंट होती है जब आप रजिस्टर वैल्यू बनने की बात करते हो। तो आइदर यू गो थ्रू आईबीबीआई प्रोसेस, जो उनके प्रोसेस है, जो उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग चाहिए होती है, या फिर डायरेक्टली आप चार्टेड इंजीनियर के थ्रू भी आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। सो अच्छा आपको जो अच्छा। कंफर्ट लगता है वो आप देख सकते हो। और डीप डाइव ओके। पूरा होगा, इसका मतलब पूरा एक फ्लो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल इस बिल्कुल। ट्रेनिंग का जो पर्पज है ना आकाश जी, मैं आपको बताऊं, इस ट्रेनिंग का जो पर्पज है वो ये जी है जी। कि जैसे मैं अनअवेयर था ना बिल्कुल कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जैसी कोई चीज है या नहीं है, तो मैं हम्म। पूरा अनअवेयर था, राइट। और आज के तारीख में यंग ग्रेजुएट्स, इवन लाइक हैविंग समवन हैविंग 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर स्ट्रगलिंग समवेयर, एंड दे डोंट सी कि हमें कोई पता भी है कि ऐसा कुछ है। और ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जो जॉब है, इज लाइक ए कॉर्पोरेट जॉब। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छी चीज है वो। तो सर वही दैट्स व्हाट वी कंफर्म आर करना ट्राइंग। चाहूंगा, क्योंकि मैं एक फर्म, मेरी खुद की फर्म है, तो मैं जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं करूंगा भी नहीं। और जी आकाश। जो मैं करूंगा तो मतलब खुद का ही वर्क करूंगा, जो इम्पेनलमेंट के थ्रू होगा, तो वो मुझे मिलना चाहिए आपके द्वारा, जी उसकी तो सर प्रोसीजर मेरा इसके भी यही वी प्रॉपर है। हैव मिलना चाहिए आपके द्वारा। जी तो वी हैव ए सेशन। अब ये इसका क्या प्रोटीनिंग कैसे कर सकते हैं, हमने एक सेशन रखा है प्रोसेस के लिए कि अगर एमपैनल, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग में, क्योंकि अभी क्या, दिस इज फोर्थ बैच। सो हर बैच पे ना हमको एक्सपेक्टेशन पता लग रही है कि जो वैल्यूएशन में अपना देख रहे हैं करियर है या एमपैनल होना है, क्या क्या देखते हैं। तो हमारे 3 बैच में हमको रियलाइज हुआ कि सम देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस, टू नो दिस प्रोसेस एज वेल। तो हम लोग लास्ट टाइम से सक्सेसफुल है कि हम लोग एक बैंक के वैल्यूअर को ला पाए, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। एंड नाउ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं किसी एम्पेनल्ड वैल्यूअर को लेके आऊं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उनकी जर्नी जी क्या जी रही, जी। कैसे उन्होंने सीखा, या बैंक को कैसे अप्रोच कर पाए, या जो भी चीज है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, एंड होपफुली आई विल बी सोहेल और मैं सक्सेसफुल। मतलब दोनों इसलिए जुड़ रहे हैं कि भाई, हाँ, हम खुद का काम कर पाए बैंक तो में एज तो अ फ्री आप इम्पेनलमेंट वैल्यूअर। जी जी। तो आप मतलब ऑप्स, मतलब जो भी प्रोटीन है आप उनसे बात कीजिए, एक सेशन है पक्का। अब इट वुड बी इन द लास्ट ऑफ द पार्ट। सो वॉट एवर हम्म। ऑप्स, मतलब जो भी प्रोटीन के प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मतलब वही अगर मैं कंफर्म होगा तो फिर हम जेन्युइनली ज्वाइन करेंगे पार्टिसिपेट। डेफिनेटली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक, कंफर्म है ये सेशन होगा 100%। इस तरह का सेशन हम रख रहे हैं। अब आप जी। कैसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पूरे कोर्स के लिए आना चाह रहे हैं, एक सेशन के लिए आना चाह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, या जो भी इनके पास। ओके ओके। राइट। ओके, श्योर थैंक यू। श्योर आकाश। थैंक यू आकाश जी। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। जी तेजस जी। हाय तेजस, हाय। जी सर, मैं 2016 पास आउट हूँ एंड राइट नाउ आई एम जी वर्किंग एज ए सिविल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर साइट जी पर वर्क कर रहा हूँ। और सर जी मुझे भी अभी यही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में पता चला। तो बस मुझे जी। जानना था कि जो आप अभी एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, तो क्या वो साइट एक्सपीरियंस था या फिर बाद में वर्किंग एज ए प्रॉपर्टी वैल्यूअर की बात कर रहे थे? मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि देयर आर सम बैंक जिनके पोस्ट जब आते हैं ना, जिनके जब क्लियर पोस्ट आते हैं तेजस, तो वो ये बताते हैं कि वी नीड एक्सपीरियंस पीपल आइदर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और फ्रॉम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो वहां पे आप ओके। एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, मैं मतलब आपसे एक जनरल थॉट अपना दूंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, कि अगर आप 6 ईयर्स आप काम कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आपको ग्रोथ नहीं नजर आ रही है या कोई और रीजन है कि आपको लग रहा है कि नहीं है, देन यू शुड switch, after this long time. 6 years is a good time to invest in any industry. तो अगर यस आप एग्जैक्टली। आप देखते हो, क्योंकि इसमें अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो द रेम्युनरेशन वुड बी 2.5 to 3.5, और बेसिस ऑफ योर ऑन योर एक्सपीरियंस समवन कैन ऑफर यू लाइक 4 लाख और 5 लाख। तो अगर आपको ये यस लगता है कि स्विच आपको आपके करियर या आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है, तो देन यू शुड लुक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यू आर राइट। क्योंकि अभी क्या है, साइट पे भी जो वर्क है वो मतलब साइट जी वर्क भी एक लेवल पे खत्म हो जा रहा है। अब जिस तरह से अभी आपने बोला, उसकी जी हायरार्की जो है कि हम जी रीजनल टेक्निकल मैनेजर बन सकते हैं या उससे जी आगे जी एम्पेनल्ड श्योर। हो सकते हैं, तो जी आगे जाके जी हमारे पास चांसेस ज़्यादा है। जी जी हाँ, तो इसलिए जी सिर्फ जानकारी लेनी थी मुझे।
कि मतलब श्योर सी ये कोर्स पूरा इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इसमें। जॉब इवन हम लोग ट्राई करते हैं कि because this course is not so expensive, it's just at very affordable price. So एग्जैक्ट हम लोग कोई जॉब प्लेसमेंट वाली बात नहीं करते, पर फ्रॉम जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन एंड आई हैव लाइक अ वेरी गुड सर्किल, सो मैं उनको पूरा हेल्प करता हूँ अपने एंड पे कि व्हाट्सएप जॉब से या जो भी जॉब्स आ रहे हैं या कोई रिकमेंडेशन आता है तो भी मैं करता हूँ। इवन आफ्टर कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन डू। सो आप अगर देखते हो कि आपके लिए करियर स्कोप है तो डेफिनेटली यू शुड जॉइन दिस एंड यू शुड बी इन दिस कोर्स। ओके ओके थैंक यू। जी 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 तेजस्वी जी प्लीज। हेलो हेलो हाँ हेलो। गोपाल हियर। हाय गोपाल हाय। हाँ सर, अब अभी मैं फ़िलहाल तो एज अ टेक्निकल ऑफिसर हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जी जी गोपाल। फ़िलहाल तो मैं इस फील्ड में न्यू हूँ, वैल्यूएशन में। मैं साइट इंजीनियर था, वहाँ से मैंने स्विच किया है एज अ टेक्निकल वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जी 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 तो अभी मैं एज अ टेक्निकल हूँ। हमारे ऊपर जो पोस्टिंग आती है पोर्टफोलियो क्लस्टर और बाद में आता है रीजनल टेक्निकल मैनेजर। ठीक है, रीजनल जी 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 तो सर ये जो अपना जो कोर्स है वहाँ पे अगर अभी देखो मैं यहाँ से साइड में से सीधा वैल्यूएशन बैंक सेक्टर में एंट्री किया एज अ फ्रेशर गया मैं। ठीक है, वो मिलती नहीं है फ्रेशर, लेकिन मुझे मिल गई। जी जी जी। तो मेरा जब मैं मेरे जो सीनियर उनके साथ जब डिस्कस करता हूँ तो मुझे ना बहुत सा जी इशू ये बात का है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वेरी डिफरेंट टाइप के आते हैं मेरे सर। ठीक है, लाइक गाउटान बिल्कुल कभी सुना भी नहीं होगा गाउटान। तो बिल्कुल मैं साइड इंजीनियर था, मैं साइड इंजीनियर का मेरे को ये पता है कॉलम वगैरह अपना जो बीबीएस वगैरह वो पता है। मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे ना मैं पूरा माइंड मेरा कंफ्यूज हो गया कि साला मैं यहाँ पे घुसा क्यों, मतलब पूरा चेंजेस लाइक मुझे तो कभी कभी लगता है कि सेल्स में तो नहीं चले गया मैं। ठीक है, और इशू तब आता है सर मुझे कि मेरा ना नॉलेज कहीं तो भी कम है, ऐसा मुझे फील होता है कि नहीं यार, मैं साइड इंजीनियर था तो मुझे अच्छा नॉलेज था। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूएशन में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नॉलेज कहीं पे तो कम है। जब मैं डिस्कस करता हूँ मेरे सीनियर के साथ में जिनको लॉट्स ऑफ 2+ एक्सपीरियंस है, 2 ईयर प्लस, किसी किसी को 10 साल है, जो आरटीए में उनको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे। 15 साल। तो ये जो अपना जो कोर्स है उसमें वो क्लियर होगा क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो तेजस आपके लिए देखो, ये साइट इंजीनियरिंग से स्विच करके वहाँ गया है तो शायद उन्होंने कम साल काम किया था साइट इंजीनियरिंग, तो इनको स्विच करने में दिक्कत नहीं आई, मतलब इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ मिल गई। तो पॉसिबल है कि आप साइट का भी एक्सपीरियंस लेके आप एज ए फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हो। टू आंसर योर क्वेश्चन गोपाल, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ना कोई कैलकुलेटिव चीज है नहीं, मतलब ऐसा है नहीं कि हम एक फॉर्मूला डालेंगे और हमको मिल जाएगा। तो जब हम काम करते हैं ना, व्हेन वी वर्क एज ए प्रॉपर्टी वैल्यूअर, तो हम नॉन विजुअल चीजों पे ज्यादा बात करते हैं। हम एक चीज समझना चाहते हैं कि अगर मैं कोई डिसीजन बना रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो अल्टीमेटली बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन तो लैंड और प्राइस वैल्यू तो आप मिल जाएगी, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई फाइल आती है, कोई भी केस आता है गोपाल, तो वो अल्टीमेटली किसी को पैसा जा रहा है। मतलब अगर आप एक कोई फंडिंग कर रहे हो 1 करोड़ की या 10 लाख की 20 लाख की, तो वो वहां से उतना पैसा उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंक की क्राइटेरिया वहां जा रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फीड इन दिस कोर्स ऑल्सो, कि आपको वो इंसाइट दे सकूं अपने एक्सपीरियंस से कि ये चीजें आप देखोगे तो आपके रिजल्ट मेकिंग डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। तो जो गोपाल आप बात कर रहे हो कि एक्सपीरियंस के बाद जो चीजें आती है ना 2 साल के बाद, तो वही हम चीजें इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। इस ट्रेनिंग में पूरा वो चीजें हैं कि किसी भी साइट पे या गांव की साइट पे आपको क्या देखना है, कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली हमने नहीं सीखी है बीटेक सिविल में, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी। तो मैं आई कैन लाइक मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा माइंड है ना खुल जाएगा कि क्या क्या चीजें मैं देखूँ एक साइड पे जाके। तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प। गोपाल मैं जान सकता हूँ आपको कितना ईयर का एक्सपीरियंस है साइट पे? सर साइट पे में है ना, मैं 2018 में पास आउट डिप्लोमा हुआ था, उसके बाद मैंने बैचलर को एडमिशन लिया था। देन थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से मैं डिग्री भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था, तो मुझे साइट पे लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने ठीक, तो कर लिंक्डइन सकते पे हो आप स्विच। लिंक्डइन पे मुझे थोड़ी सी लिंक मिली तो डायरेक्ट इंटरव्यू, हालांकि फ्रेशर होने के बाद उन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा सा टफ लिया उन्होंने। एज अ फ्रेशर था इसलिए थोड़ा सा टफ दिया, लेकिन वी आर टेक्निकल पर्सन, अपन को मतलब हमको अपने जैसे को सिविल को टेक्निकल इशू में कोई नहीं आता है। टेक्निकल अगर पूछते, उन्होंने मोस्टली मुझे टेक्निकली पूछा, वैल्यूएशन फील्ड में गया फिर भी उसने टेक्निकली पूछा, इसलिए मैं क्रैक कर पाया इंटरव्यू। हालांकि इंटरव्यू थोड़ा जी टफ जी लेते हैं जी वहाँ पे। तो 2 साल के बाद जी मैंने स्विच किया था यहाँ पे।
जी जी ठीक है। और किसी के क्वेश्चंस है तो अबाउट द ट्रेनिंग और एनीथिंग वी कैन आस्क। ये लैंग्वेज जो होने वाली कोर्स क्या है, मतलब इंग्लिश, फुल इंग्लिश और मिक्स हिंदी? नहीं, मैं आप जो कंफर्टेबल होगा, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो हमारे सबका कंफर्टेबलनेस आएगा, अगर मिक्स में आएगा तो वी विल ट्राई कि हम मिक्स में बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि समवन कैन बी फ्रॉम साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो उनके लिए भी। बट आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है कि हम समझा पाए, राइट? जी गोपाल जी। सर ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा और टाइमिंग क्या रहेगा? आई थिंक दिस कोर्स इज फ्रॉम 8, शायद 8 से है, मुझे भी आइडिया नहीं है फिक्स डेट क्या रखी है, बट मोस्टली 8 या 9 है। एंड टाइमिंग वुड बी इन द इवनिंग। तो आपके जो भी मतलब वर्किंग लोग हैं उनके हिसाब से रखते हो ध्यान में, शाम को रखा जाएगा 7-8 बजे के आसपास ही। तो ये इस तरह का टाइमिंग रहेगा, मतलब डे टाइम में नहीं रहेगा कुछ भी, इवनिंग में हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है सर। और एक डाउट था, जी रुचा। ये इसमें ना जी गोपाल। वैल्यूएशन में डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? लाइक जी 7/12 गाउठान सर्टिफिकेट, सेल डीड, XYZ बहुत सारे रहते हैं, तो ये भी इसमें कुछ जी इंक्लूड रहेगा क्या पूरा टॉपिक? इंक्लूड है इसमें, सारे डॉक्यूमेंट के एग्जांपल, रीडिंग, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसमें, क्या क्या देखना है, सब है इसमें। ओके सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे आता है, क्योंकि हर रीजन में अलग अलग डॉक्यूमेंट रहते हैं और सी जब आप डिफरेंट टाइप के रहते प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में जब आप बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन की लीगल जो आप चीज देखते हो, तो लीगल आपको बहुत जरूरी है समझना। तो हमारे पास लीगल टीम भी होती है, राइट? आप एयू में काम कर रहे हो, आपको पता है लीगल टीम होती है, तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करती है। और आपके वैल्यूएशन को अप्रेज या ना अप्रेज करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सबके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, नहीं तो विल फिनिश ऑफ दिस। मुमनी यू कैन म्यूट योर माइक प्लीज, मुमनी। सर ये डॉक्यूमेंट भी कुछ प्रोवाइड करते हैं सर आप लोग, मतलब कुछ फॉर्मेट वगैरह चेकलिस्ट कुछ होता होगा? हाँ, एक सैंपल जो भी मतलब जो आपको हेल्प कर सके, चेकलिस्ट हमने बनाई हुई है, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अरे ये सर बता एनबीएफसी के लिए आप एनबीएफसी क्या देखो, एक सर तो ये बैंक होती है जो एनबीएफसी? पूरा सेविंग अकाउंट वगैरह सब चीजें होते हैं, जिनके यहाँ पे हम पूरा एफडी वगैरह सब कुछ हुआ होता है। उसके अलावा एक हमारा होता है कि एनबीएफसी जो होती है जो सब हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, उनके पास कोई एफडी या कोई सेविंग अकाउंट मतलब बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग, उसमें ज्यादा वैकेंसीज होती है क्योंकि वो नंबर ज्यादा है, मतलब बैंक अगर स्टैंडर्ड बैंक 10 है तो एनबीएफसी बहुत ज्यादा है। तो जी जी ओके। वैकेंसीज उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका ऑपरेशन ही पूरा एक्सपांडेड में है। जैसे बैंक आप देखते होंगे तो मेन सिटीज में, मेन टाउन्स में होते हैं, पर एनबीएफसी आप देखोगे तो रूरल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो दे नीड मोर पीपल फॉर वर्किंग। ओके सर, थैंक जी यू जी। थैंक यू। सो डन, ओके। सो आई होप आपको कोर्स का कंटेंट समझ में आया है, और इट्स अ गुड कोर्स फॉर ग्रेजुएट्स, recent graduates, and plus some year of experience, and who want to look for start their career in property valuation. So please like join, and then we'll see from day one. So I will leave. Thank you all. Thank you all. Everyone, we have dropped the registration link. Kindly go through the link for course registration. And thank you everyone for joining the session.